Good morning, everyone. This is the sum we will be doing now in today's lecture. Following is the balance sheet of Bhaskar Limited as on 31st March 2017. So, balance sheet liability side, there are 30,000 preference shares of 10 each. 30,000 into 10 is 3 lakhs, and less calls in arrears. Calls in arrears means what? Calls in arrears means outstanding amount in shares, means company has demanded the money but shareholders have not paid the money. Company has called the money, but the shareholders, some of them have not paid the money. So 25,000 is calls in arrears. So the net amount 3 lakh minus 25,000 come to 2 lakh 75,000. There are 40,000 equity shares of rupees 10 each. 4 lakh. General reserve is the only reserve given in the question. Trade payable is there. In the asset side, we have fixed asset, investment, stock and debtors are given together, and we have cash and bank balance. Cash and bank balance 50,000. On the above date, the preference shares. Above date, the preference shares are redeemed. So on the above date, the preference shares are redeemed. Calls in arrears were recovered in full and sufficient. See here, they say on the above date, that is 31st March 2017, preference shares were repaid. Redeemed means repaid. कॉल्स इन एरियर्स were recovered in full. मतलब ये जितने लोगों ने पैसा नहीं पे किया था 25,000, everyone have paid in full, means all the money which was in arrears have been recovered, and sufficient number of equity shares. Sufficient means कितना इक्विटी शेयर्स इशू करना है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है. सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 50%. सो जितना ₹10 का शेयर 50% प्रीमियम, मतलब 10 का 50% इज 5. मतलब हम लोग जब मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो वी विल टेक ₹10 शेयर and ₹5 premium. Total we will take ₹15 from the shareholders after using divisible profit. Divisible profit हमारे पास कितना है? Divisible profit only one general reserve है हमारे पास, and वो 2 लाख का है. उसको यूज करने के बाद बाकी अमाउंट के लिए we will issue equity shares in the market. So we will see कि हमें कितना पैसा चाहिए. हमें 3 लाख चाहिए रहेगा. 30,000 into 10, जिसमें से 2 लाख जनरल रिजर्व में से मिला, तो 1 लाख के लिए हम इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे ₹10 वाला at ₹15 premium, because 50% is the premium. For the purpose of now then afterwards, for the purpose of making payment of preference shareholders, bank overdraft facility is arranged. मतलब बिजनेस के पास उतना कैश नहीं है, दे हैव ओनली 50,000 एंड दे विल गेट सम अमाउंट बाय सेलिंग इक्विटी शेयर्स. तो बोलते हैं जितना कम पड़ेगा दैट विल बी अरेंज्ड through bank overdraft facility to the extent necessary, so has to leave a cash balance of ₹30,000. मतलब हम जितना भी शेयर्स इशू करेंगे, हम लोग मतलब हमें जितना भी पैसा पे करना है, रीपे करना है, उसमें 30,000 एक्स्ट्रा वी विल कि मतलब 30,000 रख के ऊपर से हम और एक्स्ट्रा क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज करेंगे. वो कितना करना है, वी विल गो टू द वर्किंग नोट एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट कितना हमें जरूरत होगा फॉर द दिस वन, फॉर द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितना चाहिए, दैट वी विल सी इन दैट वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्किंग नोट. You are required to pass journal entries and show the balance sheet after redemption. So let us prepare journal entries in the books of Bhaskar Limited. Journal entries
in the books of Bhaskar Limited, in the books of Bhaskar Limited. So here we have date, not date, serial number, particulars. Then we have ledger folio, debit, credit. So let us prepare, let us adjust the columns. Then we have amount के लिए column. We have column for amount, and then we have column for ledger folio, LF. So let us name it serial number, particulars. Then we have LF. Then we have debit rupees and credit rupees. So in our first entry क्या बोला गया है कि हमें जितना भी कॉल्सिन एरियर्स है वो पूरा मिल गया. तो कॉल्सिन एरियर वॉज 25,000. तो जब हमें शेयर होल्डर्स पे करेंगे वो पैसा वापस करेंगे, बिजनेस में कैश विल कम. सो इट विल बी 25,000 we will get back जितना मिलना चाहिए था. And what will happen, जो calls in arrears था वो cancel हो जाएगा to calls in arrears account 25,000. तो इसको बोलेंगे being calls in arrears, being calls in arrears recovered. सो ये हो गया. इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे ताकि वी गेट द मनी. तो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. लेट अस गो टू द वर्किंग नोट फर्स्ट एंड फाइंड आउट कितना हमें इक्विटी शेयर्स इशू करना, बिकॉज क्वेश्चन में सफिशिएंट नंबर बोला है. दे हैव नॉट गिवन द नंबर ऑफ shares. So nominal value of preference shares to be redeemed, preference shares to be redeemed. So here how many shares are there? 30,000 into 10. So we will require 3 lakh of rupees, and then from this what we will do, 3 lakh चाहिए. इससे हम, let me first remove this space what is there. Let me remove that space. So what we will do here, nominal value, तो इसमें से less करेंगे nominal value of new shares, that is we don't know the number, that will be the balancing figure. यहाँ पे that will be the balancing figure, and हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलता है नॉर्मली CRR, which is capital redemption reserve. So capital redemption reserve, उसके लिए let us see what sources we have. Sources for CRR, we have only one source, that is general reserve. तो हमारे पास सिर्फ जनरल रिजर्व है, और क्वेश्चन में बोला है कि जितना डिविजिबल प्रॉफिट है कि जनरल रिजर्व आपके पास है वो पूरा यूज करो, और जितना कम पड़ता है उसके लिए आप न्यू शेयर्स इशू करो. तो हमारे लिए 2 लाख है, तो कम कितना हो रहा है, 1 लाख. तो 1 लाख के लिए हम क्या करेंगे, 1 लाख के लिए हम मार्केट में न्यू शेयर्स इशू करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, 10 रुपीज का शेयर एट प्रीमियम ऑफ 50%. सो लेट अस सी हियर how much are the number of shares. Number of equity shares will be equal to 1 lakh divide by 10. तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each,
एट ₹15। कैसे 50% प्रीमियम है, 10 रुपीज का शेयर एंड उसमें 50% प्रीमियम, तो 10 का 50% इज 5, तो 5 रुपीज का प्रीमियम, तो टोटल हम लोग शेयर्स इशू करेंगे 15 रुपीज में, शेयर्स इशू करेंगे 15 रुपीज में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, when we will sell shares in the market we will get cash, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स 10,000, 10,000 इंटू 15 रुपीज मिलेगा विद द प्रीमियम, सो हमारे लिए है 1,50,000। इसमें हमें दो चीज के लिए पैसा मिल रहा है, वी आर गेटिंग फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10 रुपीज का शेयर है, and here remaining amount we will get two securities premium, two securities premium, securities premium is 10,000 into 5, 10,000 शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है और 5 रुपीज का प्रीमियम है, तो हमें कितना मिलता है, इक्विटी शेयर मिलता है 1 लाख एंड प्रीमियम मिलता है 50,000, बीइंग न्यू शेयर्स इशूड, इसको बोलेंगे बीइंग न्यू शेयर्स इशूड फॉर रिडेम्पशन, बीइंग न्यू शेयर्स इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, फॉर द पर्पस ऑफ redemption, for the purpose of redemption. So this entry is done. Now what we will do, now we will find out the amount on redemption, redemption में कितना amount due है वो find करेंगे. So how much is the percentage of preference share, not given, percentage preference share का नहीं दिया है तो डायरेक्टली लिखेंगे अभी जब when we will pay the preference share liability है, पे करने वाले हैं तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे प्रीमियम भी नहीं है रिडेम्पशन में, इक्विटी शेयर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं पर यहाँ पे रिडेम्पशन प्रीमियम में नहीं है, ये रिडेम्पशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, टू किसको मिलेगा ये पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ कैपिटल का पैसा देना है, प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं देना है, तो हाउ मच इट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देयर आर 30,000 प्रेफरेंस शेयर इनटू उनको 10 रुपीज देना है, सो इट विल बी 30,000 इंटू 10 दैट इज 3 lakhs, तो अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन इज 3 lakh, इन दिस सम देयर इज नो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सो यहाँ पे बोलेंगे बीइंग amount due on redemption, being amount due on redemption, being amount due on redemption, तो इसके बाद अभी क्या करना है, CRR तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, किससे क्रिएट करना है, CRR हमें क्रिएट करना है, किधर से, CRR हमें क्रिएट करना है जनरल रिजर्व यूज करके, तो जनरल रिजर्व, इसीलिए हमने पूरा जनरल रिजर्व यूज किया, जनरल रिजर्व में प्रीमियम के लिए कुछ पैसा साइड में नहीं रखा, बिकॉज यहाँ पे रिडेम्पशन में प्रीमियम ही नहीं है, हम इसलिए हमने पूरा जनरल रिजर्व, पूरा डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर लिया फॉर क्रिएटिंग CRR, फॉर क्रिएटिंग CRR, 2 CRR, तो दिस इज हाउ मच, 2 lakh बोलेंगे बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR created, being CRR created, now we have to pay amount on redemption, अभी हमने 3 लाख चाहिए था रिडेम्पशन में, 1 लाख इक्विटी शेयर से, 2 लाख CRR से आ गया, अभी हमें अमाउंट पे करना है रिडेम्पशन में, लेट अस सी हाउ मच अमाउंट वी हैव, let us see how much amount we have on redemption, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेना पड़ेगा देखते हैं, this was first working and now second working will be for calculation of बैंक ओवरड्राफ्ट facility, देखना पड़ेगा ना, calculation of बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट का लिमिट कितना लेना पड़ेगा हमें, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट, सॉरी, बैंक overdraft. Let us see how much bank overdraft we will take. So let us see here in the sum. So let us see हमारे पास बैलेंस कितना है, बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है, let us see कैश balance, let us see how much cash balance we have. तो कैश बैलेंस के लिए let us go to the balance sheet and see हमारे पास कितना कैश बैलेंस था, 50,000. हमारे पास कैश बैलेंस था 50,000. कैश बैलेंस इज 50,000 एंड हमें कितना पैसा मिला, पॉलिसी नेरियर में हमें 25,000 मिला, इक्विटी शेयर में हमें 1,50,000 मिला. So we'll write again this paragraph, we don't want it. तो यहाँ पे we will see हमें ऐड करेंगे, कितना मिला हमें, ऐड पॉलिसी नेरियर्स अमाउंट रिसीव्ड, पॉलिसी नेरियर अमाउंट रिसीव्ड, वो कितना मिला, पॉलिसी नेरियर अमाउंट रिसीव्ड 25,000 मिला. फिर हमें ऐड न्यू इशू में कितना मिला, न्यू इशू, रिसीट और न्यू इशू, रिसीप्ट ऑन न्यू इशू में हमें 1,50,000 मिला, 1,50,000. तो टोटल हमारे पास अभी कितना कैश है, टोटल हमारे पास अभी कितना कैश है, टोटल अभी हमारे पास 2,25,000 है, 2,25,000. तो 2,25,000 में हमें कितना पैसा कैश का बैलेंस शीट में रखना है, मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है, मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड, कितना हमें कैश बैलेंस मेंटेन करना है, क्वेश्चन में बोलते हैं 30,000. तो इतना हमें मेंटेन करना है. तो ये लेस कर दो और तो कितना बचता है हमारे पास, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 1,90,000. तो ये है हमारा कैश अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, कैश अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, कैश अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन है 1 लाख, कैश अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन इज 1,90,000. बट हमें कितना चाहिए, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन कितना है, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन है 3 लाख. हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3 लाख देना है, इस 3 लाख. तो कितना कम पड़ रहा है हमें, कितना अमाउंट हमें चाहिए, एक्सटेंट ऑफ बैंक ओडी कितना होना चाहिए, कैन एनीवन टेल मी, एक्सटेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी द बैलेंसिंग फिगर, कितना होगा ये बताओ. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमारे पास कितना है, कितना होता है, ये माइनस करो, कितना होता है, इट इज 1,95,000, सॉरी, इट इज 2,25,000 में से 30,000 माइनस किया तो इट इज 1,95,000. 2,25,000 से हम 30,000 माइनस करते हैं तो इट इज 1,95,000 और हमें चाहिए 3 लाख. तो कितना और पैसा हमें जरूरत है जो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा, 1,95,000 में से 3 लाख माइनस करो, यू विल अंडरस्टैंड कि हमें कितना पैसा और चाहिए. वी विल रिक्वायर 1,05,000. इज इट करेक्ट,
हमें कितना अमाउंट चाहिए, 1,05,000। ये कैसे आया, हाउ डिड यू गॉट दिस अमाउंट, 3 लाख minus 1,95,000, you got this amount 1,05,000, करेक्ट। तो मतलब अभी हमें बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, तभी हम इनको पे कर पाएंगे। तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे तो हमारे पास क्या पैसा आएगा, बैंक बैलेंस आएगा। अकाउंट कितना चाहिए हमें, हमें कम पड़ रहा है 1,05,000, तो वो हम लोग बैंक से लेंगे। और क्या क्रिएट होगा, क्रिएट होगा एक लाइबिलिटी विच इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग ये पैसा बैंक से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है इतना पैसा टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, थोड़ा पैसा कम पड़ रहा था। तो बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट रेस्ड for the purpose of redemption, for the purpose of redemption। अभी हमारे पास पैसे आ गया, चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैश बैक। तो अभी हमारे पास पैसे आ गया, तो अभी हम लोग हमारे पास कितना पैसा बचा, ऑलरेडी था हमारे पास 1,95,000 था, फिर हमने 1,05,000 एक्स्ट्रा लिया बैंक ओवरड्राफ्ट से। नाउ वी हैव 3 lakhs, so now we can pay the preference shareholders। preference shareholders क्रेडिट में है, अब इनको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इन द क्रेडिट, इनको पे करेंगे तो कैंसल हो जाएगा, तो क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, और पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट, कैश बैंक अकाउंट। कितना पे करना है, 3 lakhs, कितना पे करना है, 3 lakhs। तो बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। के बाद एक और चीज क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज बैलेंस शीट। तो लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट नाउ। कौन सा कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है भास्कर लिमिटेड। सो इट इज मिसेस भास्कर लिमिटेड and it is balance sheet as on, let us see the period, balance sheet as on 31/3/2017. So I will write here 31/3/2017, 31/3/2017, and bracket में I will write after redemption। ये जो बैलेंस शीट है it is after redemption। So what we will do now, we will prepare the balance sheet। तो यहाँ पे again there is a problem of space। So now कितना चाहिए, पर्टिकुलर नोट टू अकाउंट अमाउंट। So particulars notes to account and amount। सबसे पहले हम इसको बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इसमें जो सबसे पहला है इसको बोलेंगे शेयर, इक्विटी को बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। और उसमें दो चीज रहेगा, वन इज शेयर कैपिटल and the other one is reserves and surplus। so नोट में ये नोट नंबर 1 और ये नोट नंबर 2। तो लेट अस गो टू नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में पहला वाला नोट है शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल का पहला नोट है। तो शेयर कैपिटल में जरा ऊपर बैलेंस शीट में जाते हैं, हमारे पास 30,000 प्रेफरेंस शेयर था जिसको हमने रीपे कर दिया।
तो अभी हमारे पास 40,000 इक्विटी शेयर्स है जो वापस नहीं किया, वैसे का वैसा ही है, और हमने न्यू इक्विटी शेयर भी मार्केट में इशू किया 10,000, पहले 30,000 प्रेफरेंस शेयर को रीपे कर दिया, तो वो तो है ही नहीं अभी। आफ्टर रिडेम्पशन वी डू नॉट हैव दिस प्रेफरेंस शेयर, बट वी हैव 40,000 इक्विटी शेयर एंड वी हैव न्यू 10,000 इक्विटी शेयर। सो टोटल हमारे पास शेयर कैपिटल में क्या है, हमारे पास शेयर कैपिटल में 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच है। ये कितना होता है, 5 लाख होता है। तो इधर लिखेंगे 5 lakh, and now we will see about reserves and surplus. Note number 2, reserves and surplus. रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास सिर्फ जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व हमने पूरा यूज कर लिया सीआरआर क्रिएट करने के लिए, तो सीआरआर हमारे पास है। और एक चीज हमारे पास है, हमने शेयर्स प्रीमियम में इशू किया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 और सीआरआर 2 लाख। तो हमारे पास क्या है इधर रिजर्व में, हमारे पास जनरल रिजर्व पूरा नील हो गया, बिकॉज हमने जनरल रिजर्व हमने यूज कर लिया, जनरल रिजर्व हमने यूज कर लिया, तो अभी जनरल रिजर्व हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास सीआरआर है जो कि जनरल रिजर्व को यूज करके क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास सीआरआर है, सीआरआर इज 2 lakhs, और हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000। तो हमारे पास टोटल 2,50,000 का रिजर्व है। जनरल रिजर्व पूरा यूज हो गया। याद है हमने सीआरआर कैसे क्रिएट हुआ, जनरल रिजर्व यूज करके। तो हमारे पास अभी हम लोग देखेंगे, हमारे पास नॉन करंट, अभी जो लाइबिलिटी है वो 2 टाइप का है, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब डिबेंचर्स, बैंक लोन, ऐसा कुछ। बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लोन, वो जल्दी पे करते, शॉर्ट पीरियड में पे करते, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं, कोई लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है हमारे पास। सो ये नील लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ ट्रेड पेएबल्स है और जनरल रिजर्व जो हमने यूज कर लिया रिजर्व। सो नाउ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ए है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग किसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जनरल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का लिया हमने, 1,05,000 का, कितने का, 1,05,000 का। और इधर आएगा ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच इज ट्रेड पेबल्स, 3,25,000। सो हम लिखेंगे 3,25,000, 3,25,000। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल। तो इसके बाद रोमन 2 इज असेट्स। असेट्स भी 2 टाइप का है, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट और करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में फिक्स असेट आता है, तो क्वेश्चन में देखो फिक्स असेट है और इन्वेस्टमेंट है, दोनों नॉन करंट है, 4,50,000 एंड 5 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन करंट असेट में हम फिक्स असेट लिखेंगे, नॉन करंट असेट में हम ये फिक्स असेट लिखेंगे, फिक्स असेट इज 4,50,000। सो लिखेंगे 4,50,000। फिर हमारे पास एक और चीज है, दैट इज नॉन इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी में ऐसा बोलते हैं नॉन करंट या करंट। तो हम लोग अज्यूम करते हैं इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म नेचर का ही होगा, नॉन करंट हमने अज्यूम किया। तो इसके बाद हमें चाहिए बी, दैट इज करंट असेट्स,
करंट असेट्स। तो करंट असेट में क्या है हमारे पास? करंट असेट में हमारे पास स्टॉक एंड डेटर्स है और हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है। स्टॉक और डेटर हमें अलग से चाहिए था, बट क्योंकि ये एक साथ है तो हम वर्किंग नोट में इसको करते हैं, स्टॉक एंड डेटर्स एंड कैश बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे so we will go here, note number 3, नोट नंबर 3 में करंट असेट के लिए फाइंड आउट करते हैं। करंट असेट में स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स दिया है क्वेश्चन में 2 लाख, करेक्ट? स्टॉक एंड डेटर क्वेश्चन में 2 लाख दिया है, कितना दिया है? हाँ 2 लाख दिया है। एंड कैश बैंक बैलेंस 50,000 था, बट हमने वर्किंग नोट किया है उसका, हमारे पास कैश बैलेंस 50,000 था, फिर 25,000 आया कॉल्सिन एरियर में, फिर 1,50,000 आया फ्रेश इशू में, हमारे पास 2,50,000 था। और हमें कितना मेंटेन करना है? मिनिमम कैश बैलेंस 30,000 का, और बाकी का जितना भी पैसा था हमने उसको यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। हमने क्या 30,000 साइड में रखा मिनिमम कैश बैलेंस, और बाकी का पैसा हमने रिडेम्पशन में 3 लाख रुपया पे कर दिया। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, यहाँ पे वी विल, हमें पता है अभी कि हमने क्या किया है, हमने क्या मिनिमम कैश बैंक बैलेंस कितना रखा है? कैश एंड बैंक बैलेंस या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट is 30,000 as told in the question कि मिनिमम कैश बैलेंस 30,000 रखना है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 2,30,000। तो करंट असेट के लिए हमने नोट 3 बनाया और करंट असेट है 2,30,000। 2,30,000 इसके साथ हमें ये बैलेंस शीट का टोटल निकालना है। 4,50,000 प्लस 5,00,000 प्लस 2,30,000 इज इक्वल टू 11,80,000। यहाँ पे भी देखो सेम आता है क्या? 5,00,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,05,000 प्लस 3,25,000 विच विल बी इक्वल टू 11,80,000. With this our balance sheet has tallied and the sum is over. Thank you everyone.